हाँ जी Assalamu जी alaikum. My name is Rimsha Khalid and my group member is Mahanur. Today we're gonna present topic of derivatives. Firstly, we discuss introduction of derivative. Derivation is the exact rate at which one quality changes with respect to another. A derivative, a point indicates the instantaneous rate. रिम्शा, आपकी पार्टिसिपेंट कौन सी है? और Mahanur. महानूर। अच्छा, अपना रोल नंबर जरा मुझे बताइएगा, पिछली स्लाइड करें जरा। 27572. रिम्शा का 27572 और 278। ठीक है, दोनों ही BBA 3B की हैं जी। ठीक है जी। The derivative is the exact rate at which one quantity changes with respect to another. A derivative, a point indicates the instantaneous rate of change and slope of the tangent line at specific point on the curve of the function. The process of finding derivative is called differentiation. In business world, there are many applications for derivative. One of the most important application is when the data has been charted on graph or data tables such as Excel, or once it has been input, the data can be graphed, and with other applications of derivatives, you can estimate the profit loss point for certain ventures. Profit and loss graph helps visualize how a certain option strategy may perform over a variety of prices. These graphs help us understand or gain or loss potential for a given strategy. Profit loss graph also help replicate various positions with options. Next, move on Mahnur. जी महानूर, अपना इंट्रोडक्शन दे महानूर। Assalamu alaikum everyone, my name is Mahnur and now I will further discuss the remaining topic. Previous slide. जी रिम्शा आपके पास है, वो कह रही हैं कि प्रीवियस स्लाइड करें। Now I will discuss the questions related to this topic. Marginal profit in producing TVs. The Advanced Visual System Corporation realizes a total profit of P of X minus 0.0002x cube plus 0.01 6x square plus 80x minus $70,000 per week from the manufacture and sale of Z unit of their 52-inch HD TVs. We have to find the marginal profit functions, and then we take the derivative of P of X minus 0.002x cube plus 0.016x square plus 8x minus $70,000, and we get the answer 0.006x square plus 0.032x plus 80. And now we compute profit when the company produced 2000 units and interpret the results. P 2000 units equals to 0.00 square plus 0.032 minus 2000 plus 80, and we get the answer 120. Now it's proved that marginal profit of 120 at X equals to 2000 units mean that increasing production to 2001 units will bring us about a profit of $120. Next. Next, the further use of derivative in a business. In a business, derivative is a complex type of financial security that is set between two or more parties. Trader use derivative to assess specific market and trade different assets. The most common underlying assets for derivatives are stock, bond, commodities, currencies, interest rate, and market index. Derivative refer to a type of financial contract whose value is dependent on underlying assets, group of assets, or benchmark. Contract value depend on changing in the price of underlying assets. These contracts can be used to trade any number of assets and carry their own risk.
Price for derivative derived from the fluctuations in the underlying market. Next, conclusion. Derivatives are constantly used in everyday life to help measure how much something is changing. It is they are used by government in population census, various type of science, and even economics. Knowing how to use derivative, when to use them, and how to apply them in everyday life can be a crucial part of any profession. So learning early is always a good thing. And it is also important concept that is extremely used in many applications in everyday life and also in business to predict fluctuations in the stock market. Thank you. जी ठीक है जी। जरा स्टार्ट से आप करें, एक एक 1 बाय 1 करके स्लाइड्स को। मैं करूं? नहीं स्टूडेंट इन्होंने दे दी है। चलें ठीक है स्टूडेंट, आपका हो गया जी। अब कौन सा स्टूडेंट आएगा? जरा मैंने क्वेश्चन एक करना था, लेकिन चलें ठीक है, ओके फाइन। आप दोनों हम लोग दे दें कर ले। मैं रिमशा मैम एक और मिनट शेयर करती है वापस, सॉरी उसके नेट का इशू है। जी जी स्क्रीन शेयर करें। गौस उन लोगों ने शेयर करनी है यार, अभी बंद कर दो अपनी। जरा एक मिनट रिमशा आप जरा कीजिएगा। रिमशा ने स्क्रीन शेयर कर दी है, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है गौस ने भी ओपन ठहरिएगा। उमर है स्टार्ट। ये कौन से स्टूडेंट ने अभी स्टार्ट की है अपनी? उमर मोहम्मद। मैंने किया है। मैं रिमशा खालिद। आप दोनों की हो गई है, ठीक है प्रेजेंटेशन? यस ठीक है, यस मैम। मैं स्टार्ट उमर मोहम्मद। 15 मार्क्स आपने गेट किए हैं, ओके। और आप लोग क्विट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करें। उमर। मैं स्टार्ट। यस यू कैन स्टार्ट, बट उमर आपका ये व्यू बहुत छोटा है, मोबाइल से आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको? यस मैम। कंप्यूटर से क्यों नहीं? तो आपका ये देखे ना, ये बहुत स्मॉल सा वो आ रहा है, मतलब पूरे। जी 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 यस। अब कैसा है? यस जी, अपना नाम बताएं। माय नेम इज उमर मोहम्मद, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, थर्ड रोल सेमेस्टर, सेक्शन डी। अच्छा जी, और वैसे सेक्शन डी में कौन सा है, क्या चीज है आपकी? बीएसएफ क्या है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। क्या स्टैंड्स फॉर? क्या है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएसएफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। Ladies and gentlemen, my topic is what is 2-point form. टॉपिक जो है वो मुझे बताइएगा कि आपने रोल नंबर क्यों नहीं लिखा। पिछली स्लाइड पे जाएं अपने पार्टिसिपेंट का, और आपका रोल नंबर नहीं नजर आ रहा मुझे। जी एक मिनट। फाइनल बजट उमर मोहम्मद, ओनली वन स्टूडेंट, एंड अरसलान अली। रोल नंबर नहीं लिखे आपने? मैम माय रोल नंबर इज 28775। 28753 इस पे। अच्छा जी, और अरसलान अली का क्या रोल नंबर है? 20248। 20248। और उसका सेक्शन क्या है? बीएसएफ? बीएसपीएस। उसका बीएसपीएस, ठीक है। प्रोजेक्ट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। May I proceed? Yes. Okay, ladies and gentlemen, listen. My topic is the 2-point form. In geometry, a line is a set of points that is extended infinitely in two distinct ways. In other words, a line is made when we extend the two endpoints in either direction endlessly. Thus, we can say that a line has no endpoints. However, it is one-dimensional geometric figure since it has only one length, but does not have width. Algebraically, we can write the different form of equations of line based on the given information such as point slope form, slope intercept form, 2-point form. In this article, you will learn how to write the equation of a line in 2-point form and how to derive this equation. 2-point form equation. This is the general form of 2-point equation that we represent graphically. You can see that there's a point x1, y1 and x2, y2.
and point is pxy1. Okay, my question is, a milkman sells 650 liters of milk at 3.15 per liters and 800 liters of milk at 3 rupees per liter. Assuming the graph of the scale price and milk sold to be a straight line, find the number of liters of milk that the milk can sell at 2.50 per liter. Is there an ambiguity in question? No. Okay. Okay. Ma'am, by starting the solution, we assume X by be the number of liters of a milk sold and Y be the price of per liter. X जो है वो है liters of milk जो sold हुए हैं और Y है price per liter है. ठीक है जी. अच्छा, previous में देखा जाए तो 650 liters of milk है और 800 liters, ये हमें दो चीजें गिवन है, ये X है हमारा, और 3.15 per liter और 3 जो है रुपीस per liter, ये हमारा Y है. ओके. आगे जो फार्मूला है वो y2 minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. We have to put values of what is given, that is y minus 3.15 divided by 3 minus 3.15, and on another side, on left hand side, there is x which is not given, and 650 liter is given and 800 is also given. So we start, this is the main thing, this is the formula, and we can find the situation now. I आप call मुझे बताइएगा कि इसका जो सुने स्टूडेंट कि आप इसका फार्मूला है y2 minus y1 over x2 minus x1, इस तरह हिसाब से, और आपने जो फार्मूला रिटर्न किया है उसके बारे में जरा डिस्कशन करें. है तो ठीक, लेकिन उसको आप कैसे करते हैं जस्टिफाई? Yes, ma'am. There is a question that y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay. Y minus y1 over y2 minus 1 is equal to x minus x1 over x2 minus x1. But you can see this formula on next slide, which I currently sharing. I assume always using 2-point form, y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Okay, sure. Is there any ambiguity, ma'am? No. Next, proceed. Okay. So by putting the value, we can get this equation y equal to where is pen? Ma'am, pen कैसे आता है? ऊपर आप बाहर से आएगा और पेन बना हुआ है. Okay, ma'am. White board भी आप open So कर सकते हैं. I mark the tick on the equation which is a remain y minus 3.15 divided by minus 0.15 equals to x minus 6. मोबाइल कितनी हो गई है, जरा इसको उसी तरह बड़ा करें. Just 1 minute, ma'am. Okay. So there is a remaining y minus 3.15 divided by minus 0.15 equals to x minus 650 divided by 150. These values are remaining values. उमर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही स्टूडेंट. Share your screen. Okay, ma'am. जी, और ये मोबाइल के साइज की हो रही है, उसको दोबारा से उसी तरह. जी, यस तो हो रही है. यस.
Okay, y minus 3.15 divided by minus 0.15 equal to x minus 650 divided by 150. These values are remain values after calculating all the proceeds. Okay. Now And at the I would like to invite Arslan Ali. नो 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 एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे आपने x की वैल्यू आई है आपके पास 1301, ठीक है। Yes, तो ma'am. ये किस Yes, चीज को ma'am. रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कितनी क्वांटिटी थी, तो क्या चीज है इसमें आपके पास? जस्ट आपने इसके अंदर x एंड उसकी वैल्यूज जो फाइंड आउट की है उसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन जो था आपका फिजिकल लाइफ से था उसको किया है, जब आपके पास Ma'am, आंसर आया तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? we represent x as liters and y as a price. तो आपके पास ये x कितने लीटर आया है एट द एंड रिजल्ट? 1301 liters. 1301 लीटर आया है, लीटर मिल्क आया है, और ये कितने रुपीस पर आया है? Ma'am, y equal to 2.50 as mentioned in a question. ये आप देखें ना यहाँ पर, ये in order to find the number of liters of a milk that milkman can sell at 2.50. मतलब उन्होंने ये हमें गिवन दिया था गिवंस में ना कि आप ये जो मिल्क सेल कर रहे हैं ना वो 2.50 की प्राइस पर आप कर रहे हैं। जी आप जरा देखिएगा, ये स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट माइक जरा ऑफ कर दें। अच्छा, ये मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है कि आपने एक मिल्क की क्वांटिटी से दूसरे मिल्क की क्वांटिटी तक का डिफरेंस जो था और प्राइसेस जो था उनके अंदर जो आपने चीजें फाइंड आउट की है उसमें Yes. आपके पास एक्स और वाई की वेरिएबल्स जो आए हैं वो चीजें क्या शो क्या कर रही हैं? हेलो जी 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 उमर, यहाँ से पढ़ें एक जरा, मिनट, इन आपकी ऑर्डर आवाज टू कम आ फाइंड। जी, इन ऑर्डर टू फाइंड से पढ़ें जरा लास्ट में। In order to find the number of liters of milk that milkman can sell at 2.50, when we put y equal to 2.50. अच्छा अच्छा चलें जी, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट को दे जरा। Ma'am, I would message him. Arslan Ali would. जी अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। माइक को म्यूट कर लें, माइक को स्टूडेंट वो जो है मैं आपको बता देती हूँ। जी उमर, आपकी तरफ काफी ना डिस्टॉर्शन है, आप अपना माइक म्यूट करें। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है अरसलान, उनको माइक अनम्यूट करें। जी कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठें कि पीछे फैमिली वॉइस ना आए। अच्छा, और जी ये वाला लिंक अगर आपका जैसे ही ओवर होगा तो आप लोग दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करेंगे। जी जी अरसलान, उमर आपने इसे उसके लैपटॉप के ऊपर क्यों नहीं किया? वैसे जनरली डिस्कशन है। जी उमर करें स्टूडेंट, जी अरसलान करें, स्लाइड्स ओपन करें इसमें अपने में। जी अरसलान, Ma'am, just for 2 minutes, he is coming. ओके अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पे लाइन पड़ेगी तो जिस स्टूडेंट ने स्क्रीन शेयर की हुई है ना उसको पता चल रहा है कि कौन रिटर्न कर रहा है। ये येलो कलर की जो लाइन लगा रहा है ना, तो उमर आपकी जो कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपके ऊपर साथ नाम लिखा आ रहा होगा दैट दिस पर्सन दिस स्टूडेंट इज राइटिंग, ठीक है। केयरफुल रहिएगा। अरसलान अली हैज स्टार्टेड। यस
इस वाली प्रेजेंटेशन के बाद तमाम स्टूडेंट्स अगेन इस लिंक को ज्वाइन करेंगे और अगेन मीटिंग हम करते हैं। जितनी मीटिंग्स होती जाए कोई बात नहीं, 2-2 स्टूडेंट्स के हिसाब से मीटिंग्स करते जाते। जी अरसलान स्क्रीन को करें जरा। मैम मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन मोबाइल के जितने साइज की। यस ये तो द एंड जो एंड था वो x आया है 3001। यस तो अब x को -650.15 इक्वल टू और इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई -0.65। जी और मैम जो है 15x को दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी बनेंगी? यस मैम। जी अरसलान अरसलान आपका आगे काम बताएं कितना रहता है, आपने आगे रिप्रेजेंट कितना करना है? नेक्स्ट स्लाइड इससे करें जरा। जी ये हो गया, इसे आगे करें। जी जी सारी स्लाइड्स इकट्ठी जरा दिखा दें। यस मैम। जी अरसलान आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम अभी आ रही है बात। हाँ जी, आप ये मुझे बताइएगा कि हाँ जी इसके बाद आपकी कितनी स्लाइड है? इसके बाद लास्ट स्लाइड है ये? यस मैम ये लास्ट स्लाइड है। जी तो अरसलान आप मुझे ये बताएं कि ये जो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जब स्लाइड पे इतना लिखते हैं तो उसके अंदर ये स्टार्ट वाले जो आपने है ना बुलेट पॉइंट से दिए हुए डॉट की सूरत में ये नहीं देते, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा x इज इक्वल टू 1300 आ गया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? और दूसरा ये कि आपको सिर्फ एक स्लाइड की पार्टिसिपेशन तो नहीं करनी चाहिए, आपने जब शो करना है तो कम से कम आपको उसके अंदर थोड़ा सा आप उसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन में अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को भी एक्सप्लेन करें उसका। मैम तो चलिए मैंने खैर डेप्थ में जाना था लेकिन आपने उमर से बहुत क्वेश्चंस कर लिया ना, मैंने वहाँ यहाँ पीछे से स्टार्ट करना था। कहाँ से आपने स्टार्ट करना था? मैम ये अच्छा मैंने ये स्लाइड शेयर की हुई है। अच्छा ये मुझे ये बताइएगा कि आप बताएं मुझे, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने देख लिया है, आप मुझे ये बताइएगा कि इस क्वेश्चन का ओवरव्यू जरा बताएं, पीछे से जाते हुए जरा सा हम सॉल्यूशन नहीं कह रहे, वैसे बताएं कि ये क्वेश्चन और मैम आंसर को आपस में रिलेट करके बताएं। ओके मैम मैं शेयर करता हूँ। अच्छा ये जो है हर चीज में दो प्रोबेबिलिटीज देखी जाती है, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जी तो मैम इसमें यही है ना कि अगर आप 650 लीटर ऑफ मिल्क सेल कर रहे हैं 3.15 रुपए पर ना, और अच्छा 8 एक मिनट आप एक मिनट अगर आप मुझे बताएं, स्लाइड को आगे लेकर जाएं जरा, एंड वाली स्लाइड पे लेकर आएं। जी यहाँ पे मुझे बताएं इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को देख के कि मुझे कहाँ से पता चलेगा
कि ये प्रॉफिट पे जा रहा है और कितने % प्रॉफिट पे जा रहा है। इसी इक्वेशन के अंदर सोल्यूशन में मुझे क्वेश्चन नहीं उसी पे जाएं। हाँ जी, इसी इक्वेशन में आप बताएं कहाँ से पता चलता है कि यहाँ से चीज प्रॉफिट पे जा रही है। मैम ये तो अब पीछे चले जाएं, स्लाइड पे पीछे जाएं। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्लोप y2, ये देखें लेफ्ट वाली साइड पे जो है ना y2 माइनस y1, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसे जैसे ही जो है मैं उसको लेकर आती हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 पे, ठीक है, ये राइट साइड पे जैसे ही जाता है तो यहाँ से आपके पास स्लोप जो है वो 0.15 आती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्लाइड पे है, जरा नेक्स्ट स्लाइड पे है स्टूडेंट। ये असल में फार्मूला है y(x माइनस y1 इज इक्वल टू m और यहाँ से आपके पास ये आपने ना ब्रैकेट यूज नहीं करनी थी स्टूडेंट, यहाँ पे तकरीबन चले खैर शायद उसमें खैर ये जहाँ पे आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाता है तो वहां से आपको रिप्रेजेंट होता है कि ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और ये प्रॉफिट में जा रहा है। जी आप वापस क्वेश्चन की तरफ आए। यस मैम आ गया। जी पढ़े, बहुत ही छोटा सा टॉपिक आपने किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन, उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया और लाइफ के अंदर, और दोनों ने प्रेजेंटेशन देनी थी तो थोड़ा सा उसको ना वास्ट करते। अच्छा जी बताइएगा, जरा मुझे बताएं। मैम यही है ना कि अगर 650 लीटर ऑफ मिल्क में 3.15 लीटर पर करते हैं और 8 लीटर पर करते हैं आप 3 रुपए पे 1 मिनट, 3.15 क्या है पर लीटर, रुपीज है मैम। मैम ये क्वेश्चन है ना। हाँ जी, ये मुझे ये बताइएगा इसमें मैम प्राइस इसमें कौन ये सी है? गिवन है ना कि आप वो मिल्क सेल कर रहे हैं जी मैम, ठीक है। इसमें यही गिवन है ना कि मतलब हम जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे और उसमें हमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। साथ अगर आप प्राइस भी बढ़ाते हैं या कम करते हैं, अगर आप क्वांटिटी दूध की बढ़ाते हैं और प्राइस भी बढ़ा देते हैं तो वो हमें लॉस पे जाएगा, और अगर हम प्राइस क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और प्राइस कम कर देते हैं तो वो भी हमें लॉस पे जाएगा, और अगर बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट जाएगा, और अगर आप इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो वो हमें फिर ना लॉस पे जाएगा ना प्रॉफिट पे जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है ना वो यही है कि जी प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये जो शुरू वाली इक्वेशंस के पॉइंट्स हैं 650, 3.15, ये तो x1, ये जो चारों वैल्यूज, नहीं पीछे जाएं क्वेश्चन में, ये वाले जो पॉइंट्स है ना 650, 3.15, 800 और 3.00, ये तो आपने x1, ये चारों वैल्यूज जो हैं फार्मूले के अंदर, फार्मूला लेकर आए, फार्मूला, हाँ जी चले फार्मूला अगली वाली स्लाइड में ले जाएं, चले इसी में ले जाएं, x1 y1 की जगह पे और